Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009. Starting with the US branch in 2010, Atomy is a global company which opened 17 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. In 2020, Atomy opened in China, Colombia, Hong Kong, and India. Plans are underway to open in Turkey, New Zealand, the United Kingdom, Brazil, France, etc. It is preparing to open 30 branches within 5 years. Atomy provides absolute quality and absolute price products to the world and is expanding its global sourcing global sales GSGS strategy through the Atomy Global Sales Network. Atomy's success system, which allows the company to directly run seminars and succeed regardless of individual ability, is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The World Seminar is the next generation of distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world, regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Product trials through augmented reality, extended reality, virtual tours, etc. Atomy presents a vision of a global success system that transcends time, riding the wave of the untapped era. In order to help partnering companies provide the best quality products, Atomy provides various support measures such as cash payment a week within delivery, interest-free operating funds, and a joint quality management system, and so on. These create a culture of accompanied growth in a virtuous cycle. Sharing is a mission that all companies must have. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of everyone in society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united and provide support for the happiness of all. A company that keeps to its principles and creates new distribution cultures. A company expanding globally with the trust of people around the world. A company that dreams of customer success beyond customer satisfaction. A company that cherishes the spirit. We are proud Atomy.
थैंक यू सो मच। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सबका मैं वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए। और कनेक्ट होने के बाद जो अभी हम लोग 40 मिनट्स 45 मिनट्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसके अपडेट्स के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बिजनेस में आगे बढ़ना, बिजनेस को रन करना एक्चुअली बहुत टफ हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जितनी भी बातें आज हम लोग करने वाले हैं ना, वो वो आपके आने वाले टाइम में बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के काफी काम आने वाला है। वो आपको एक्चुअली में उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, राइट। देखिए, मैंने ये अभी लगभग 10-15 डेज का गैप हो गया था बीच में, 10-15 डेज का इनविंसिबल स्पीक के ऊपर जो हम लोग बातें करते आए हैं। बीच में ऑफलाइन मीटिंग था, ऑफलाइन मीटिंग 4-5 मीटिंग्स हुए हैं। ऑफलाइन मीटिंग मैंने किया है अभी कुछ स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर। और उस रीजन से मैंने कुछ अभी बीच में हमारा कुछ जो लगातार जो प्रेजेंटेशन होना था वो ब्रेक हुआ था, राइट। बट इसको हम लोग कंटिन्यूएशन में रखना है। कंटिन्यूएशन रखने का सेंस मतलब ये है कि ऑफलाइन मीटिंग होगा तो उसमें कोई पॉसिबिलिटीज तो है नहीं कि उसके अंदर कैसे मैनेज करोगे, राइट। तो हम लोग आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत ही दमदार तरीके से मैं आप लोगों को सब स्वागत करना चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसे समय पे, एक ऐसे दहलीज पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे एडमी को 1 साल 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, राइट। 1 साल कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हैं, 12 महीने निकल रहा है। 12 महीने के अंदर कितने सारे अचीवमेंट्स आए, कितने लोग सेल्स मास्टर बने, कितने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला, कितने लोग डायमंड मास्टर क्वालिफाई किए, शेरन रोज मास्टर क्वालिफिकेशन हुआ। और लगातार जो क्वालिफिकेशन पे क्वालिफिकेशन निकलता जा रहा है, प्रोडक्ट कंपनी कंपनी लगातार प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे कहानी आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 महीने में, आज एटमी इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो एटमी इंडिया ने लगातार प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। जो रिक्वायरमेंट थे ऑफर की, जब बात करें, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे कि फेस्टिवल के अंदर ऑफर्स मिलेंगे आपको, और ऑफर्स कंपनी ने उस चीज को समझा और बहुत ही बेहतरीन ऑफर आप लोगों के सामने लाकर रखा, राइट। इस ऑफर का फायदा भी हमें उठाना है। फेम के ऊपर बहुत ऑफर आ चुके हैं और फेम के पीछे, मैं हमेशा बोलता हूं, द गेम बिहाइंड द फेम, ठीक है ना। इस चीज को समझिए, हर एक ऑफर के पीछे एक गेम प्लान होता है, राइट। कोई भी जब ऑफर होता, ऑफर का मतलब क्या, देखिए आप समझना, कभी भी आप जब चैनल सेल्स में जाओगे ना, जैसे कि मैंने तो काम किया हुआ है डिफरेंट कंपनी के अंदर, चैनल सेल्स के अंदर जब कंपनी कोई ऑफर देती है ना, तो ऑफर का एक बेनिफिट होता है, एक शॉर्ट टर्म में एक बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट को आदमी इंजॉय, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो जो आपके होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ये लोग उस ऑफर का बहुत तगड़ा फायदा उठाते हैं, राइट। और फायदा उठा करके ये लोग बिजनेस में, आई मीन, उसको एक अच्छा खासा पैसा लोग बनाते हैं उस बीच में। लेकिन जब बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आती है, जब बात एडमी की आती है, जब बात हमारी कंपनी की आती है, और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास ऑफर्स आते हैं, उस ऑफर्स का हम लोग किस लेवल में बेनिफिट उठा पाते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग का पार्ट है। अगर आप प्लान बनाओगे तो ऑफर समझ में आएगा, प्लान नहीं बनाओगे ऑफर भी समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, कंपनी जब ऑफर देती है ना, तो कंपनी का अपना एक प्लान होता है, उसे उसकी पूरी कैलकुलेशन, अगर आप एटमी के एमडी से जाके बात करोगे कि आपने ये ऑफर निकाला है, क्या प्लान है, क्या आप एक्सपेक्टेड क्या फिगर देख रहे हो, कितना सेल देख रहे हो, वो सारी फिगर उनके पास होगा, करेक्ट। लेकिन जब एमडी अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि आपका क्या प्लान है, तो वो प्लान क्या आपके पास है, ये सवाल है। क्या आपने उस चीज का प्लान बनाया? आज जैसे 2+3 का ऑफर फेम के ऊपर चल रहा है, राइट। 2 फेम परचेस करो, 3 आपको फ्री मिल रहे हैं। इस जो फ्री ऑफर है, इसके पीछे अगर आपने एक प्लान बना लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया जा सकता है, आपका भी और आपके टीम का भी, राइट। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो अलग मुद्दा है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये 1 साल, कंपनी का जो 1 साल पूरा होने जा रहा है, इस पे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक जो प्रेजेंटेशन जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो आज वो है माइंडसेट के ऊपर, उस पे मैं आऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस बिजनेस में जब जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो किस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, जो आपके साथ भी है और आपके टीम में भी है। जाने अनजाने में लोग इस चीज को उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माइंडसेट डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलत माइंडसेट से बिजनेस में आओगे तो आपके साथ गलती होगा, राइट माइंडसेट से जब आप बिजनेस में एंट्री करोगे तब आपके साथ सही चीजें होंगी। तो सवाल ये उठता है कि राइट माइंडसेट होता क्या है इस बिजनेस के लिए। जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर राइट माइंडसेट क्या है, ये हम लोग को समझना होगा, और वही है आज मेरा टॉपिक, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर आपको मैं जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज, उसके बारे में प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। बने रहिएगा लगातार, ताकि मैं आप लोगों को कोई, आई मीन, जो बेस्ट तरीका हो सके मैं उससे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा
कि इस बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है और इस बिजनेस के अंदर एक्चुअली में लोग कहां पे फंस जाते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट माइंडसेट, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट माइंडसेट इन आवर इंडस्ट्री, कहने का मतलब कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जब अपनी इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में क्या है राइट माइंडसेट, ठीक है ना, और किस माइंडसेट के साथ हमें बिजनेस को करना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ हमें बिजनेस में आना चाहिए, ये आपको भी सीखना पड़ेगा और अपने टीम में लोगों को सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत चैलेंजेस आपको इस बिजनेस में आएंगे, राइट। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, इसमें अगर कोई किसी का सवाल हो, किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ अगर पूछना चाहता हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, आपको मैं बताता हूँ कि माइंडसेट बेसिकली होता क्या है। हर काम के पीछे अलग अलग माइंडसेट होता है। आप सुबह जब घर से बाहर निकलते हो, एवरी डे आपका माइंडसेट जो होता है वो चेंज होता है। मंडे को माइंडसेट अलग होगा, ट्यूसडे को आपकी माइंडसेट, जब आप घर के लिए घर से जब बाहर निकलते हो काम को लेकर तो आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा, थर्सडे को डिफरेंट होगा, वेडनेसडे को डिफरेंट होगा, सैटरडे को डिफरेंट होता है, संडे को आदमी का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, करेक्ट। इस बिजनेस में कुछ सर्टेन माइंडसेट है जो आपको बना करके चलना पड़ेगा एवरी डे, हर दिन आप बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले माइंडसेट को हम लोग समझते हैं, और माइंडसेट में कुछ चीजें ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट का मतलब ये होता है, कुछ माइंडसेट हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जांपल की तरह ताकि आपको समझ में आ सके। सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट का मतलब ये होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे आपको बाजार में मिलेंगे जिनको अपने आप पे बहुत भरोसा होता है। अपने आप पे बहुत भरोसा कहने का मतलब उनको लगता है कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करूंगा ना उसको मैं कर लूंगा, उनको इतना भरोसा खुद पे है, वो उनका माइंडसेट है। चाहे इस बिजनेस में करें या फिर कोई और ट्रेडिशनल काम करें, कुछ भी करें, उनका माइंडसेट जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। और सेल्फ ट्रस्ट मतलब उनको अपने आप पे बहुत भरोसा है, ये बहुत जरूरी भी होता है, राइट। दूसरा एक होता है गोल सेटिंग वाला माइंडसेट होता है। गोल सेटिंग माइंडसेट कहने का मतलब कि देखो, जब कॉर्पोरेट में होते हैं ना तो कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है ना कि ये गोल सेटिंग माइंडसेट हमेशा रहता है। मतलब एवरी डे जब आप सुबह उठोगे और जब अपना आप सुबह से लेके शाम तक जब शेड्यूल चेक करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मेरा आज गोल इतना है। आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजते बजते आपका गोल समझ में आ जाता है कि आज मुझे क्या करना है, ये आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। गोल सेट का मतलब, माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि हर चीज को ना आप बहुत ही कैलकुलेटिव वे में आप काम करना चाहते हो। कैलकुलेटिव कहने का मतलब कि आज सुबह से लेकर शाम तक, आज मान लो कोई अगर कोई बिजनेस क्लोज करना है, राइट, तो बिजनेस क्लोज करना है तो कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद कितने देर वहां पे डिस्कस करना है, वहां से आने के बाद मुझे क्या करना है, एवरीथिंग जो है ना वो एक रिटन आपके डायरी में लिखा रहता है। तो वो होता है गोल ओरिएंटेड वर्क, ठीक है ना। गोल ओरिएंटेड जो होता है मतलब हर एक चीज बहुत ही कैलकुलेशन में रहता है, करेक्ट। और ये आपकी गोल सेटिंग का माइंडसेट होता है। गोल सेटिंग का हर चीज कैलकुलेशन में रहेगा, हर चीज, कोई भी काम करने से पहले वो अपना नोट डाउन कर लेते हैं लोग, कहीं ना कहीं डायरी में कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखते हैं कि आज दिन भर मुझे ये काम करना है, ठीक है। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी भी रिक्वायरमेंट हमारे इस बिजनेस के अंदर है। एक होता है पेशेंस वाला माइंडसेट होता है। ये एक आदमी, ऐसे लोग मैं देखा हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही, मैं बताऊं आपको, कुछ इतने भारी भरकम पेशेंस लेके इस बिजनेस में आते हैं जो रिजल्ट आई डोंट नो, ये मैं आपको इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत, ठीक है ना। मैंने कई लोगों को देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल हो गए, 9 9 साल हो गए। कुछ लोग तो मैं जानता हूं जो 12 12 साल से एक ही कंपनी में, एक ही इंडस्ट्री, लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, लेकिन वो बंदा पेशेंस बनाए हुए, पेशेंस बनाए हुए लगातार मीटिंग में आता है, हर एक सेमिनार को अटेंड करता है, सब काम करता है, लेकिन जिस हिसाब से उसको सक्सेस मिलना चाहिए, जितना समय उसने इन्वेस्ट कर दिया, उस हिसाब से जो उसको उसको एक ग्रोथ मिलना चाहिए था, वो समहाउ मिसिंग है। लेकिन फिर भी उसकी एक पेशेंस इतना स्ट्रांग लेके बैठा है। अब वो मुझे नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में वो किस लेवल पे जाएगा, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कि आउट ऑफ बिजनेस चला जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। वो शायद मतलब आप देखो उसमें क्या होगा ना, काम करो मतलब नहीं करो, रिजल्ट मिले नहीं मिले, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। उन्हें एक दो तीन चीजें उनको पता होता है कि मेरे को मीटिंग में जाना है, मेरे को सेमिनार अटेंड करना है, मेरे को ये करना है, वो करते रहते हैं, लगातार करते हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 9 9 साल 10 10 साल हो गए। वो आदमी, जब मैं पहली बार उससे मिला, पहली बार मैंने देखा, मिला, जो भी आप कह लो, वो तब भी उसी पोजीशन पे था,
जब 9 साल के बाद जब मैं दोबारा पूछा, मैंने उनसे पूछा कि क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है आजकल आपका? वही काम चल रहा है सर, बढ़िया। क्या पहुंचे, क्या बने? अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी होगा, अभी कर रहे हैं, चल रही है, बात चल रही है। इस साल लगता है कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा। हम बोले बॉस 9 साल और रैंक में कोई चेंजेस नहीं है। मैं उनको कैसे बोलता वहां पे कि यार आप कैसे काम कर रहे हो, आप गलत तरीके से काम करो। इमीडिएटली मैं नहीं बोल सकता, मुझे क्या लेना देना है किसी से, मैं क्यों आगे किसी को बढ़ के मैं सजेशन दूं। तो मैंने रुक गया, लेकिन मैं देखा कि इस आदमी का पेशेंस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, क्या ये पेशेंस बिजनेस में काम आएगा? क्या जिस हिसाब से जो पेशेंस लेके बैठे हैं, क्या ये रिजल्ट देगा क्या? और ऐसे ऐसे घने एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर। कोई कोई एक पोजीशन पकड़ लिया तो 5 साल 6 साल तक उसी पोजीशन पे बैठा है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पेशेंस लूज नहीं करते। तो ये एक ऐसा माइंडसेट है ना, जिसको मैं सही भी नहीं बोल सकता और गलत भी नहीं बोल सकता। राइट, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आदमी एक बार लगातार किसी चीज को करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो सक्सेस मिल जाता है, ऐसा सुना है हमने। लेकिन एक टाइम बाउंड तो होना चाहिए ना। मानते हैं ना इस बात को? कोई काम आपने अगर शुरुआत की, अगर वो समय पे नहीं होता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। कह लो आप, जैसे आपने टारगेट बनाया इस बिजनेस के अंदर कि मेरे को सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है। सेल्स मास्टर आप 6 महीने में भी क्वालिफाई कर सकते थे, आपने टारगेट 1 साल का ही बनाया। कोई बंदा 4 साल बाद भी सेल्स मास्टर बनता है तो उसकी वैल्यू उस वक्त नहीं रहेगी, क्योंकि उस वक्त सेल्स मास्टर की भीड़ हो चुकी होगी। उस वक्त वो देखेगा कि 3-3 महीने में लोग सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरे को 4 साल लग गए। तो हर तरीके का इस बिजनेस में मैं वही चीज कहता हूँ, इस एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे हर प्रकार के लोग मिलेंगे और हर प्रकार का सक्सेस आप देखोगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको आपको लोग मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लोग सक्सेस भी दिखेंगे। तो मैं गलत नहीं बोल सकता किसी को कि ये गलत है। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट माइंडसेट पे आते हैं। करेजियस माइंडसेट होता है। क्यों करेज? वो आदमी ना क्या होता है कि जैसे कोई भी काम करने का गट्स उसके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, जो भी सोचता है ना उसको करना स्टार्ट कर देता है, तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तुरंत अभी इस तरीके से काम कर रहा है, दूसरे तरीके से काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? और बहुत करेजियस है, जो सोचा इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स वो जो है वो एक तरीके से आप उसको कह लो कि वो बहुत स्ट्रांगली किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करता है मार्केट में। तो ये सब माइंडसेट, इस तरीके के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। आपकी टीम में ही देखना, कई लोग ऐसे होंगे जिनको आपने एक बार कुछ समझा दिया कि यार ये बिजनेस को इस तरीके से करना चाहिए, आप देखना वो आंख बंद करके लग जाते। वो ये नहीं लग ये सोचते भी नहीं क्या सही क्या गलत या मुझे और क्या करना चाहिए, जो अपलाइन ने कह दिया करते चले जाते। और ऐसे लोग भी बहुत आगे बढ़ते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकस्ड माइंडसेट। फोकस माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई अपना एक प्रॉपर वर्किंग बनाते हो और बहुत फोकस होकर काम करते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कई लोग इस बिजनेस में ऐसे लोग आते हैं जहां पे उनको लगता है कि यार उन्हें बताया गया कि यार मेरे को एजेंट क्वालिफाई करना है, तो वो आदमी बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है कि नहीं मेरे को एजेंट क्वालिफाई करना है। एवरी डे उसी हिसाब से वर्किंग करेगा। अगर जो जो उसको सिस्टम ने कहा कि यार आपको डेली इतना प्लान दिखाना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है, या आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे वर्किंग करना, बहुत ही फोकस्ड होके उस पर काम करना शुरू कर देता है। वो डाइवर्ट नहीं होता। डाइवर्ट इन द सेंस, इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कि आदमी फ्लक्चुएट बहुत करता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में रहता है, इतना फ्लक्चुएट करता है, घड़ी घड़ी आपको लगेगा अरे आदमी को क्या हो गया, अभी तो ठीक था। आप आज काम कर रहे हो, उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हो, और इमीडिएटली आपको 3 दिन के बाद लगेगा ठीक ठाक तो था ये बंदा, फोन नहीं उठा रहा, क्या हो गया, कल तो बड़ा एनर्जेटिक था, आज फोन ही नहीं उठा रहा। ऐसा होता है आप लोग के साथ? 100% होगा। राइट? तो आपको भी समझ में नहीं आएगा यार कल तक तो सही चल रहा था, आज अचानक से इसको क्या हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और ये जो फोकस्ड माइंडसेट होते हैं ना, तो ये मतलब जो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो लोग जिस तरीके से काम करता है ना, उसको आप कोई चीज अगर दिखा दो, ठीक है, वो बिल्कुल जैसे घोड़ा जानते हो आप, जब आपने घोड़ा चलाया होगा, टांगे पे बैठा होगा, तो उसमें देखना आपके सामने ना ये लगा रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके लगा रहता है कि उसकी आंखें दाएं बाएं ना देखे, वरना वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उधर भी देखेगा वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो इधर भी देखेगा अरे ये कैसे काम कर रहा है, फिर अपना स्ट्रेटजी लेफ्ट राइट करना शुरू कर देता है। करेक्ट?
ठीक है ना। इसलिए वो बहुत फोकस्ड है, जो उसको बताया गया उस हिसाब से काम करना। और ये लोग जो है इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत, मैं इसको शायद अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं फोकस्ड माइंडसेट जो बंदे होते हैं ना, ये लोग इस बिजनेस में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फोकस होकर काम करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपना माइंडसेट आता है पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, पॉजिटिव तो बहुत ही जनरल, सबको पता है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में बंदे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, लीडर्स इस तरीके के होते हैं कि कोई भी आप नेगेटिविटी मार्केट में कर लो, माइंडसेट इतना पॉजिटिव है कि हर जगह पे वो अपनी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। कुछ मान लो बिजनेस को लेकर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, या कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए, या कोई भी किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा नेगेटिव बात बोल दिया, बंदा वहां से कहीं ना कुछ पॉजिटिव निकाल के बैठा रहेगा। वो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है एनी टाइम। आप देखना आपके टीम में कई लोग ऐसे होंगे जिससे आप जब भी, भले ही वो काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसके रिजल्ट आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन जब भी आप फोन पे बात करोगे ना, उसकी एनर्जी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भैया बहुत पॉजिटिव रहता है यार, इतना पॉजिटिव रहता है लेकिन काम क्यों नहीं करता, रिजल्ट्स क्यों नहीं आते इसके, राइट। ऐसे लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारे जो है ना, ये रिक्वायर्ड है, ये सब लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे माइंडसेट के लोग आपको आपके टीम में मिलने वाले हैं। अगर या तो होंगे या तो आने वाले टाइम में आ जाएंगे। तो किस माइंडसेट के बंदे को कैसे टैकल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने माइंडसेट के लोग होते हैं। मैं नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है और आप लोग के सामने मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करूं तो ज्यादा बेटर है। नेगेटिव माइंडसेट के बारे में क्यों बात करें हम लोग, नेगेटिव माइंडसेट के बारे में सब जानते हैं। नेगेटिव माइंडसेट में छोटा सा अगर मैं कुछ बताना, अगर सुनना चाहते हो, तो नेगेटिव माइंडसेट वो होता है जो हर काम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके बैठ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम लेके बैठने का मतलब ये हुआ कि आप उसको सब कुछ सॉल्यूशन ला के दे दोगे, फिर भी कुछ ना कुछ वो इश्यूज निकाल के बैठ जाएगा। ठीक है, वो नेगेटिव, उसका माइंडसेट जो है नेगेटिव, उसकी गलती नहीं है उसमें, वो अपने अपने हिसाब से जैसे भी अपना जीवन जिया है, राइट। उसको हर चीज में नेगेटिविटी दिखता है। उसको बोलोगे कि यार यहाँ से वहां जाना है, मतलब मान लो राजस्थान से दिल्ली जाना है, अरे यार क्या किसानों का आंदोलन चल रहा है, कहीं बीच में गाड़ी रोक दिया तो, नेगेटिव माइंडसेट। दुनिया जा रही है, दुनिया अप डाउन कर रही है, लेकिन उस आदमी को अगर आप बोलोगे तो वो इस तरीके से आपको, जस्ट मिनट आप लोग म्यूट रखिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, उसको अच्छे पॉजिटिव काम भी करने बोलोगे तो उसके माइंडसेट पे पहले ही नेगेटिविटी, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रहा, गलती उसकी नहीं है, वो उस इन्वायरमेंट में ही समय निकाला है। तो जब आदमी जिस जगह पे जितने समय निकालेगा ना, माइंडसेट वैसे ही डेवलप हो जाता है, और उस माइंडसेट से बाहर निकलने में उसको टाइम लगता है। आप इमीडिएटली किसी से आदमी से मिल करके आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, ये आदमी आगे बढ़ेगा, ये आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, ये आदमी सक्सेस करेगा, ये आदमी फेल करेगा, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये आपको स्टडी करने में समय लगता है, राइट। कई लोग ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के आदमी होते हैं। शुरुआत में आप देखना कि जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ ज्वाइन किया, अरे यार आप तो पीछे ही लग गए यार, मैं ठीक, आप इतना बोल रहे हो तो मैं आईडी दे रहा हूँ आपको, लो रखो आईडी, कर दो मेरी आईडी क्रिएट कर दो, मैं काम नहीं करूंगा भाई पहले ही। ऐसे लोग होंगे आपके टीम में जो आपको बड़ा इरिटेट होकर आईडी दिए होंगे, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट में एक्टिवेट हो जाते हैं, अरे यार नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा दोस्त है, मेरा सीनियर है, इसने किया उसने किया, ये आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया। तो बंदे को चार जगह से चार इंफॉर्मेशन आती है, और वही आदमी जो पहले बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी था, वही सबसे पॉजिटिव हो जाता है और वही रिजल्ट निकालना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, कभी भी हम लोग प्री जज नहीं कर सकते। आप स्टडी करके एक झटके में आदमी को समझ नहीं सकते कौन आदमी क्या करेगा। इसलिए हमें ये क्वालिटी अपने आप अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि हर लोगों को साथ लेके चले। आप मेरी बात को समझना, ये टीम मैनेजमेंट का खेल है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हम लोग बात करते हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन मैनेजमेंट, यही यही आपको सीखना है, और इससे बड़ी लर्निंग कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपने अगर 500-1000 आदमी की टीम हैंडल कर ली बहुत अच्छे से ना, तो याद रखना कि किसी भी कॉर्पोरेट में कहीं भी चले जाओ, टीम हैंडलिंग अगर काम मिल गया तो आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ जाओगे। तो टीम हैंडलिंग अपने आप में बहुत ही दमदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होता है, और किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे टीम हैंडलिंग इतनी आसानी से मिलती नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपने हिसाब से नेटवर्क क्रिएट करो, अपने हिसाब से अपनी टीम को बिल्डअप करो। इसलिए लर्निंग अपार है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस में सक्सेस करोगे नहीं करोगे, सीखोगे, कितना पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, क्या होगा, ये सब सेकेंडरी है।
लेकिन जब बात लर्निंग की आती है तो इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है, और सीखोगे जरूर 100%। अगर आपको 1 साल भी हुआ है, 6 महीने भी हुआ, तो आपने बहुत कुछ सीखा हो। करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हर कुछ कुछ लोग ऐसे भी देखना आपके टीम के अंदर होंगे जो हमेशा, एज डजंट मैटर, वो भले ही 50 साल के हो या 55 साल के, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है। मतलब वो सीखना चाहते हैं। अगर कोई 22 साल का लड़का भी कुछ सिखा रहा है तो वो सीखना चाहते हैं। वो सीखता है उस 22 साल से। उसमें उनके 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 जहन में ये नहीं आता कि यार ये 22 साल का बच्चा मेरे को सिखाएगा क्या, या 22 साल का लीडर मेरे को सिखाएगा क्या। वो उनके अंदर फीलिंग नहीं होती। कोई भी सामने बैठा है उस आदमी से वो सीखता है, और ऐसे लोग भी टीम के अंदर होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। राइट। तो ये जो 7 तरीके के माइंडसेट मैंने अभी आपको आपके सामने डिस्कस किया, इसलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बिजनेस जो है ना, ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है दोस्त। एक चीज हमेशा याद, इसको मंत्र बना लीजिए। ये बिजनेस लोगों का, ह्यूमन मैनेजमेंट में बार बार यूज कर रहा हूं ये वर्ड, ह्यूमन मैनेजमेंट। अगर आपको लोगों को टैकल करना सीख गए, लोगों के साथ उठना बैठना, उनको पढ़ना अगर आप सीख गए, स्टडी करना सीख गए कि यार ये आदमी की सोच क्या है, उसके अकॉर्डिंग जिसको जो पसंद है वही दो। राइट। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और इतने तरीके के माइंडसेट के लोग आपके सामने आने वाले हैं। अगर इस तरीके के माइंडसेट के लोग अगर आपके सामने आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उनको आगे लेकर चलना है, अगर ये आपने प्लान बना लिया तो आपको इस बिजनेस में बहुत मजा आने वाला। आप इस बिजनेस को, मैं लिटरली बोल रहा हूं, इंजॉय करोगे। राइट। ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही पावरफुल चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और एक चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर हम लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, सुबह से लेकर जब हमारी आंख खुलती है, जब नींद से हम लोग जागते हैं और जब रात को सोने जाते हैं, तब तक हम लोग एक नेगेटिव माहौल में रहते हैं। बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। और वो शुरुआत आपके घर से ही होता है, आपके घर से ही होता है। और आप देखना कि इस बिजनेस को लेके नेगेटिविटी जो है आपके घर से ही, कई लोगों मैंने एग्जांपल देखा है कि उनके घर से ही स्टार्ट होता है। फिर वो नौकरी करने बाहर जाते हैं या बिजनेस करने बाहर जाते हैं, दुनिया भर का ऑब्जेक्शन, हर लोग गली चौराहे में बैठे हैं आपको नेगेटिव करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए ये चैलेंजेस हैं आपके लिए, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी नींद खुलती है, आप घर से जब बाहर निकलते हो, घर से शुरुआत होता है। नेगेटिव माहौल की शुरुआत आपके ही घर से होता है, अनफॉर्चुनेटली। मैं दूसरों की क्या बात करूं, घर से ही प्रॉब्लम शुरू होगा, वो इंड होता है मार्केट में रात को जब आप घर पहुंचते हो, वापस से वही माहौल। तो आपका जो एक सराउंडिंग है ना, वो एक नेगेटिव माहौल में है। तो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट के बीच में अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये भी एक कला है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, अभी जो मैं स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं, इसमें राइट एसोसिएशन की बात मैं कर रहा हूं। राइट एसोसिएशन बहुत जरूरी है। राइट एसोसिएशन मतलब ये कि अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। कोई आपका मित्र है, मैं कह रहा हूं, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है लेकिन वो सुबह शाम नेगेटिव बातें करता है, दूर रहिए उससे। भले वो बिजनेस में ही हो, आपके बिजनेस में होने के बाद भी अगर वो नेगेटिव बातें कर रहा है, उस आदमी से दूर हो जाओ। अपना एसोसिएशन सुधारिए, सही लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए। इस बिजनेस के अंदर अमूल चूल परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। अमूल चूल परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपको पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर के, चूल का मतलब होता है हेयर, बाल, ठीक है ना, यहां तक अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, तब जाकर के इस बिजनेस में एक सही मुकाम पे पहुंचोगे आप। ठीक है। तो राइट एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आपको डिसाइड करना है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे किस आदमी के साथ ज्यादा समय निकालना है, किसको मुझे हाय हेलो करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई निगेटिव आदमी तो उसको आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, उसको देख के ही भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं है। दूरी बनाए रखो, डिस्टेंस डिस्टेंस रखो। कैसा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया, ओके चलो ठीक है, मिलता हूं भाई, बोल के निकल लो वहां से। लेकिन जो पॉजिटिव आदमी है, जिससे आपको सीखने को मिलता है, उसके साथ समय गुजारिए। वो भले ही आपका अपलाइन हो, आपका डाउन लाइन हो या आपका क्रॉस लाइन हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसमें कुछ लाइंस है, देखो ये सब मेरे लिखे हुए नहीं है, जो प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ ना, इसमें कुछ तो मेरे पास जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ चीजें मैं गूगल से निकालता हूँ। मतलब देखो, ये प्रेजेंटेशन से लेके हर एक चीज ये बनाया हुआ मेरा नहीं है दोस्त, और मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता जो आप लोग को नहीं पता। सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। क्या बोल रहे हो सर? स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो हो रहा है अभिमन्यु, मेरे में तो दिख रहा है। आई मीन मैं तो सिस्टम से कनेक्टेड।
बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है आपका स्क्रीन। नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। कुछ लोग को शो हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। सर काफी टाइम से नहीं हो रहा आपका स्क्रीन शो। अभी आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए एक बार आप लोग, अगर बाई चांस कुछ दिक्कत हो दोबारा आप अनम्यूट करके मुझे बताइएगा, है ना? ठीक है। अब देखिए, अब ये मैं जब बात एसोसिएशन की कर रहा हूं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझना पड़ेगा कि आपकी, देखिए हम लोग आदमी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, किसी ऐसा नहीं है कि वो आदमी के अंदर टैलेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस सराउंडिंग में अपना समय निकालते हो ना, वही सबसे बड़ा एक रीजन बन जाता है आपके फेल्योर का, आपके लाइफ में फेल्योर का, क्योंकि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किस मोहल्ले में रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, क्या आपके सर्कल है, जो सर्कल है क्या आपको एक्चुअली में आपके काम आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्त, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अपने आप को शेप करना, देखिए इसमें जो है दोज अराउंड यू शेप यू, मतलब आप जिस माहौल में रहते हो ना वैसे ही आप बन जाते हो या वैसे ही दिखते हो आप एक नेगेटिव, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ, बहुत ही मस्त चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चूंकि नेगेटिव माहौल में रह रहे हो और आपका जो आउटलुक है ना वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग एक राइट एसोसिएशन में रहें, माइंड को अलर्ट रखिए, कौन आदमी कितनी बातें सुबह से लेकर शाम तक, कुछ लोग होते हैं जैसे जो होपलेस कंप्लेनर होते हैं ना, ठीक है, उनका दो तीन चीजें होती है, जैसे क्रिटिसाइज करते हैं लोगों का बैठ के, भले ही किसी भी, चाहे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो चाहे बिजनेस में काम कर रहे हो, कोई अपनी फैमिली में ही किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मेरे फादर ने मुझे ये बोल दिया यार, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है ना, मैं आज मार्केट में गया मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, ये बोल दिया, ठीक है ना, ये सब सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले जो होते हैं ना, अपने दोस्तों के बारे में बोलते रहते हैं, यार उस आदमी ने कल फोन किया मेरे से ऐसे बात किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, वो दिन भर आपके सामने बैठ के क्रिटिसाइज करता रहेगा। बचिए ऐसे लोगों से, बचिए, दूर रहिए, क्योंकि वो आपको 1 रुपया नहीं देके जाने वाला, 1 रुपए का सपोर्ट आपको उस आदमी से नहीं मिलने वाला, एक कोई भी फायदा आपको वहां पर लॉस ही होना है, ये तय है। कई बार लोग दोस्ती यारी के चक्कर में रह जाते हैं कि चलो ठीक है यार फ्रेंड है तो क्या दिक्कत है, क्या है प्रॉब्लम है बेचारा, लेकिन वो नेगेटिव नेगेटिव सुबह शाम बोलता रहता है, आप भी हाँ ना करते रहते हो और आपका पूरा का पूरा खेल वहीं पे खराब हो जाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आप समझना, अब देखो क्रिटिसाइज हो गया, देन कंडेम हो गया, देन कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, राइट, मतलब कंप्लेन, इतना कंप्लेन करते हैं, इतना कंप्लेन करते हैं, हमेशा किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई कंप्लेन करते रहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो आपके सराउंडिंग में या आपके टीम में अगर कोई ऐसा है, या तो उसको समझाने की कोशिश करो या उससे दूर रहो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। अगर उसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम इट, थोड़ा दूरी बना के बैठ जाओ वहां से, करेक्ट। नीड टू बी विद द अपलिफ्ट, आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करे, यार तुम अच्छा काम कर रहा है भाई, बड़ा यार तुमको मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है यार, तुम गजब काम करते हो, तेरी बोलने की जो आदत है ना बड़ा अच्छा लगता है, तो अब पहले तो बोलता नहीं था, अब तूने बोलना भी स्टार्ट कर लिया, यार अब तेरा आउटलुक बड़ा देख के मजा आता है, तू पहले ना बड़ा नॉर्मल रहा करता था, आजकल तू बड़ा फिट दिखता है, बड़ा चेहरे में तेरा ग्लो है, बड़ा इस तरीके से जो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं ना, वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, जो आपको सुबह शाम मोटिवेट करते हैं, उनके साथ उनके साथ रहने का, उसके साथ समय निकालिए, कहने का मतलब। जो विनिंग माइंडसेट के लोग, विनिंग माइंडसेट का मतलब ये होता है ना कि कोई, देखना आप जब मार्केट में जाओगे तो विनिंग माइंडसेट का मतलब ये हो गया दोस्त, यहाँ पे इस चीज को आप समझना कि कुछ लोग ऐसे होंगे आपके सर्कल में जो, देखना कोई भी काम करेंगे ना तो उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। वो जॉब में भी अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है ना, देखना वहां पे इमीडिएट उसको हमेशा जो है आपको प्रमोशन मिल रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट अच्छे मिल रहे हैं, उसको पैसे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग आपके मित्र होंगे। तो विनिंग माइंडसेट के जो होते हैं, जो आदमी लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, भले ही चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर वो आगे बढ़ रहा है, लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है, ये आप मान के चलना कि वो विनिंग माइंडसेट का है, उन्हीं के साथ उठो बैठो। देखना जो आदमी विनर्स होता है ना, जो आदमी एक पॉजिटिव माइंडसेट, भले वो आपके बिजनेस में हो चाहे नहीं हो, देखना कभी भी आपके बिजनेस को ना वो ब्लेम नहीं करेगा, यार पता नहीं है मैं तो समझ नहीं पाया इस बिजनेस को, लेकिन तू कर रहा है तो यार मेरा फुल सपोर्ट करेगा भाई, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना, बाकी तू कर रहा है तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी कंपनी अच्छी, तुम इसमें लग के काम करो,
देखना हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे लोग भी आपके आमने सामने आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना करना है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बदलनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आज आपसे कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा, मैं आपसे एटमी की प्लान डिस्कस नहीं कर रहा, मैं कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एक ऐसे एनिमी है आपके सराउंडिंग में, दुश्मन है आपके, जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है, आप ही के आसपास में लोग हैं, इनसे बचना होगा हम लोगों को। मुझे भी बचना है, मैं खुद भी बचने की कोशिश करता हूं, और यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप भी अपने आप को बचाइए। राइट, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो, अपने से ज्यादा मतलब आपकी जो एक कह लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या जिस स्टैंडर्ड के आपकी जो लाइफस्टाइल है, कोशिश कीजिए कि अपने से थोड़ा सा ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों से उठना बैठना शुरू कीजिए, जो आपसे बड़े भी हों या आपके सेम एज के भी हैं, लेकिन वो अच्छे प्रोफाइल में है या अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ आप उठना बैठना स्टार्ट करो जो आपको इंस्पायर करे। करेक्ट, ऐसी सर्किल बनाइए जहां पे आपको उनसे सीखने को मिले, यार ये लोग ऐसे बातें करते हैं, अरे यार ये लोग ऐसे काम करते हैं, वहां से लर्निंग मिले। ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये राइट एसोसिएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिसन योरसेल्फ, अपने आप को सुनो। और सेल्फ टॉक, ये सेल्फ टॉक कभी किया आप लोगों ने? 100% आप लोगों ने किया हो, कई लोग करते हैं। खुद से बातें कीजिए आप एक बार। कई लोगों को आपने देखा है ना, लोग खुद से बातें करते हैं, मतलब अरे यार मेरे को काम नहीं हुआ है, अब सामने कोई भी नहीं है उसके, घर में कोई नहीं, रूम में अकेला बैठा है, लेकिन ऐसे से कर रहा है, बॉस मैंने आज जो करना था हुआ नहीं, अरे यार कैसे करें, यार वो वाला काम अपना फंस गया, यार कैसे किया जाए, उसको ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो बातें कर रहा है, कोई है नहीं उसके आसपास, फिर भी बातें कर रहा है। सेल्फ टॉक कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस बिजनेस में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप खुद से पूछोगे तो आपको उसका जवाब भी मिल जाए। हर एक प्रॉब्लम का, यार मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे से हो क्यों नहीं रहा, यार मैं सेल्स मास्टर कैसे निकालूं, कैसे किया जाए, सेल्स मास्टर के लिए क्या हमें कैसे काम करना चाहिए, लेफ्ट में राइट में बाइनरी प्लान है, कैसे काम किया जाए, लेफ्ट में बैलेंस करना है, राइट में बैलेंस करना है, क्या करना है, यहाँ भी एफर्ट मारो वहां भी। तो आपको हर एक आंसर मिलना शुरू हो, आप खुद से सवाल करोगे, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। क्वेश्चन जानते प्रॉब्लम क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आदमी प्रॉब्लम को देख तो लेता है, फिर सोचता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम को आंख बंद करके बोलो, यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आंख बंद आई क्लोज कर लो, ठीक है, रूम में अकेले कोने में जाके बैठ जाओ, तो वहां पे अपनी प्रॉब्लम को देखो, एनालाइज करना स्टार्ट करो कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ये दिक्कत आ रहा है, उस वाले टीम में दिक्कत आ रहा है, अच्छा दिल्ली वाले टीम के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ओके, अच्छा ठीक है, अभी मतलब बिहार वाले टीम के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, ओके, वहां पे इसने ये अचीव कर लिया, वहां पे ये अचीव कर लिया, अच्छा उसके अंदर क्या काम करना। आप जब खुद से जब एनालाइज करोगे ना, तो उसका आपको आंसर मिलना शुरू हो जाए। राइट, ये करके देखना आप एक बार। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, सब कॉन्शियस माइंड की बातें आ जाती हैं यहाँ पे। सब कॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करता है, आप लोग ने मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, कैसे काम होता है। जो आप सोचते हो, ठीक है ना, जब आप कोई चीज सोचना स्टार्ट करते हो, जब देखिए कोई भी लाइफ में जब आप काम करते हो ना, तो आपकी सोच से ही स्टार्ट होता है। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आदमी सोचता है, दिमाग में पहले आया, फिर उसको आप पेपर पे उतारते हो, प्लानिंग बनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हो, फिर गोल सेट करते हो, फिर काम करना स्टार्ट करते हो, फिर रिजल्ट मिलता है। यही करते हो ना। तो पहली शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत आपके माइंड से होती है। करेक्ट, ठीक है। तो आपको अपने माइंड से शुरुआत करना, इसका मतलब ये है कि पहले आप खुद से जो है, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, कोई भी प्लान आप बनाना चाहते हो ना, तो खुद से सारी चीजें खुद से करने की कोशिश करो। एक अपलाइन आपको गाइड कर सकता है, लेकिन हर एक जगह जगह पे आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हर आदमी के पास इतना दिमाग है, हर आदमी के पास इतना समझ है कि बिजनेस को करना कैसे। जिसको 2 महीने भी हो गए ना, उसको मोटा मोटा बिजनेस समझ में आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो खुद का दिमाग नहीं लगा, खुद का बिजनेस में कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे टीम को बिल्डअप करना है, सब इंफॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन वो उस चीज पे वर्कआउट नहीं करता, उस चीज पे वो सेल्फ टॉक नहीं करता। सेल्फ टॉक करोगे तो हर चीज का जवाब आपको मिलेगा। राइट, इफ यू नीड बेस्ट रिजल्ट, यू नीड स्पीक बेस्ट लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, कोई भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद, बोलना स्टार्ट कर दो, बोलना शुरू कर दो, करके देखो एक बार। ये मैं कई बार मीटिंग में बोल चुका हूं कि लाइफ में जो चाहिए उसको बोलना शुरू कीजिए। इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, बिहेव लाइक अ मैनेजर, कहते हैं ना,
उसी तरीके से अगर इस बिजनेस की हम लोग बात करें, इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्स मास्टर देन बिहेव लाइक अ सेल्स मास्टर, इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड मास्टर बिहेव लाइक अ डायमंड मास्टर। लाइफ में जो चीज बनना है, जो चीज आपका टारगेट है, उस चीज को पहले अपने अंदर लाओ। ये नहीं कि आप इस बिजनेस में आए हो, एजेंट भी क्वालिफाई नहीं किया तो हम बिल्कुल ऐसे ढीले से बैठे हुए ऐसे करके नहीं। मीटिंग्स में अभी देखो, आने वाले समय के अंदर मैं इतनी सारी चीजें बदल दूंगा इस पूरे के पूरे इनविंसिबल स्पीक के अंदर। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, देखो बिजनेस की जब बातें होती हैं, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने पोस्चर पे कभी भी कोई डिस्कशन नहीं किया, यानी कि ड्रेस कोड। आपने एक चीज गौर करना, मैं बड़ी एक मैं टॉपिक से हट के बातें करूंगा। जब आप एक स्लीपर और एक मतलब नॉर्मल सा ट्राउजर पहन लिया, एक सिंपल सा टी शर्ट डाल लिया, आपकी जो चाल होती है, चलने की स्टाइल, वॉच कीजिएगा, कभी करके देखना। हवाई चप्पल पहन लिया आपने, स्लीपर, नॉर्मल स्लीपर जो होता है, नॉर्मल स्लीपर पहन लिया, एक हाफ पैंट डाल लिया, एक टी शर्ट डाल लिया और रोड पे आप चल रहे हो, और उसको बोलना अपने घर में अपने मदर और फादर, अपनी सिस्टर को कि मेरा रिकॉर्डिंग करो, ठीक है? अब वो रिकॉर्डिंग करेगी, बोलेगी देखो तुम्हारा रिकॉर्डिंग, आप खुद को देखोगे ऐसे करके, अरे यार मैं ऐसे चल रहा हूँ। और उसी टाइम आपको क्या करना है, एक ब्लेजर डालना है, एक ट्राउजर डालना है, ब्लैक शूज, फॉर्मल ड्रेस, टाई लगा लीजिए, और उसके बाद उसी रोड पे उसी स्टाइल में जाके चल के दिखाओ। आपकी बॉडी में, आपके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आपको उसी समय दिखेगा, इमीडिएटली आपको बदलाव दिखेंगे। क्यों हम लोग टाई पहन के बैठते हैं, कभी सोचा है आपने? क्यों हम लोग फॉर्मल बैठ के, फॉर्मल जब कोई लाइव ऑनलाइन मीटिंग में जाते हैं या कोई ऑफलाइन मीटिंग में भी जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेस में होते हैं? क्यों होते हैं? जानते हैं, आपका जो आउटलुक है वो आपके माइंडसेट से मैच करता है, ठीक है ना? जो आप अगर मैं अभी इसलिए एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सिंपल ड्रेस में जाओगे तो आपकी वॉकिंग स्टाइल, बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, कॉन्फिडेंस लेवल सब ढीला होगा। लेकिन अगर आपने ड्रेस चेंज कर लिया, अगर आप एक सूट ब्लेजर शानदार पहन के, बाल वाल सेट करके, थोड़ा सा बढ़िया घड़ी वड़ी बढ़िया से डाल ले, उसके बाद देखो आपके बोलने की स्टाइल, आपके चलने की स्टाइल, आपके देखने की, आपके नजरिया, हर चीज बदल जाएगा। करके देखना, मेरी बात मान लो इस बार, कभी भी मौका मिले, संडे को जब फ्री बैठते हो, ये काम करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। करके देखना एक बार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? योर सक्सेस नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू। ये बिजनेस, ये पॉइंट्स हैं, ये सब कई सारे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ बुक्स के हैं, कुछ यूट्यूब के हैं, कुछ गूगल पे मुझे कंटेंट मिला, वहां से मैंने उठाया है, ठीक है? ये मिक्स करके जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है ना? हर एक किताब में ज्ञान आपको, लैंग्वेज अलग अलग मिलेगा, मीनिंग सबका बराबर ही सेम रहता है, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं आप लोगों से, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका जो सक्सेस है ना, ये आपको इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना समय लगा रहे हो। मतलब एक आदमी बोलता है मैं तो 8 घंटा बिजनेस करता, मैं क्या करते हैं आप कितना देर लगा? मैं तो सुबह निकलता हूँ 9 बजे, शाम को रात को घर 9 बजे उतरता हूँ। 12 घंटे आप बिजनेस कर रहे हो साहब, ठीक है ना? एक आदमी 3 घंटे ही काम कर रहा है, वो पहले सेल्स मास्टर बन गया, डायमंड मास्टर बन गया। एक आदमी 12-12 घंटे काम कर रहा है, वो बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप कितना समय इन्वेस्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हो उतने समय में, वो इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटे में आपने 500 लोगों की मीटिंग कर ली ऑनलाइन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इफेक्टिव है, या फिजिकली जाके 5 लोगों से मिल करके आए? कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा, 500 की मीटिंग या 5 लोगों से फिजिकली मीटिंग करने में? नॉर्मल सी बात है कि आपने 500 की अगर मीटिंग कर ली तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, बकायदा कि आप जाकर के फिजिकली 5 लोगों से मिल करके आओ, करेक्ट? तो हमारा टाइम भी वहां 1 घंटे में मैंने 500 लोगों से मिला, और आपने 12 घंटे या 10 घंटे लगा के 5 मीटिंग आपने की। फिजिकली यही होगा ना, 5 लोग 5 लोकेशन में होंगे, उनसे उनके पास जाओगे, अपॉइंटमेंट लोगे, मिलोगे, बैठोगे, क्लोजिंग करोगे, यही सब करोगे आप। और एक जगह बैठ के आपने 500 लोगों से ज्यादा मीटिंग कर ली तो आपका काम वहां पे आसान हो गया ना। तो यही है स्मार्ट वर्क, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप कितना समय लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय में आप कर क्या रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट? अच्छा, एक नॉर्मल थे, डोंट बी बिजी फॉर द शेक ऑफ बीइंग बिजी। ये बहुत ही कॉर्पोरेट में भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? और गेट बिजी डूइंग द राइट थिंग्स। देख, कई लोग होते हैं ना, काम कुछ भी नहीं होता,
काम कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने आप को इतना बिजी दिखाता है, अरे साहब मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब, अरे भाई साहब मैं बहुत बिजी, बहुत बहुत परेशान चल रहा हूँ, मुझे ना ये काम है, यहाँ क्लोजिंग वहां क्लोजिंग, ये करना है वो करना है, 50 चीजें उनके दिमाग में चलते रहती है, वो काम कुछ भी नहीं करेगी, इतना बिजी। अच्छा इसमें आपको मैं समझाऊं, कभी आपने चूहे को देखा है? घर में चूहा कभी कभी आ जाता है ना, चूहा को आपने देखा है कभी आराम से जाते हुए, इस कोने से उस कोने बहुत आराम से जा रहा, कभी देखा क्या? वो कभी भी देखना भागते हुए जाएगा, इधर घुसा, भागते हुए उधर घुसेगा, भागते हुए इधर घुसेगा, कभी भी आराम से नहीं जाता, बड़े आराम से निकल सकता है ना? उसको कोई 500 किलोमीटर ट्रैवल तो नहीं करना है, यहाँ से इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम घूमेगा, यही तो करना है उसको, लेकिन कहीं भी जाता तो भागते हुए जाता, कभी यहाँ दरवाजे में टकराएगा, कभी वहां टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा, चूं चां करते हुए घुसते। तो ये हमारे इंसानों के अंदर भी ऐसे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास काम नहीं होता, लेकिन अपने आप को इतना बिजी शो करते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है यार, तो समझो यार आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट बॉस, बहुत हेक्टिक लाइफ होता है यहाँ पे क्या होता है, सुबह मीटिंग से लेकर के रात को 11 बजे तक हमारी मीटिंग चलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। सर कॉर्पोरेट में 15 साल हमने भी निकाल लिया, हमें भी पता है कितना टाइम किसके पास कितना काम, ठीक है ना, समय सबके पास होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको बिजनेस समझ में आया कि नहीं आया। बिजनेस समझ में आ जाएगा तो अच्छे अच्छे लोग भी टाइम निकाल रहे हैं आज इस बिजनेस के लिए। जिसको बिजनेस नहीं भी समझ में आ रहा है ना, वो आज घर में ही 24 घंटा फालतू बैठा रहेगा, लेकिन बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि लोगों को क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। विलिंगनेस, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे मैं विलिंगनेस टू लर्न के बारे में बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टूल किट टूल्स। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो आपका एक स्टैंडर्ड था, जो आपकी एजुकेशन है, जिस लेवल पे आपने अपने आप को क्वालिफिकेशन, अपने आप को मतलब पढ़ के या फिर बिजनेस को समझ के, जिस आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी एजुकेशन लिया है, आज उसके बदौलत आप इस लेवल पे हो, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो क्वालिफिकेशन था, भले आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लियो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लियो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो आपने पढ़ा उसके बदौलत आपने उस पोजीशन पे पहुंच गए। अब आपको उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना, तो क्या करना पड़ेगा? उसके नेक्स्ट लेवल अगर आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट लेवल का आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल का आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल के टूल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, राइट। तो अपने आप को, मैं इसीलिए कह रहा हूं इस बिजनेस में सीखने की जरूरत है। भले ही आप कितने साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस लेके आ जाओ इस इंडस्ट्री का, या 50 साल का, लेकिन इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आप शुरुआत आपकी जीरो से ही होती है। लोग कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस तो है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं आज से 2003 से मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, काम भी मैंने किया है, ठीक है ना। इस इंडस्ट्री की प्रॉपर मेरे को नॉलेज है। लेकिन जब मैं एटमी मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने ज्वाइन कहां से किया? सेल्स फोर्स पे ज्वाइन किया था? नहीं, मैं जीरो लेवल पे था। जब मैं फर्स्ट डे था तो उस वक्त मैं लेवल क्या था? जीरो। इसका मतलब ये है कि आप भले ही कुछ भी एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, इस बिजनेस में जब आप आओगे तो आपका लेवल जीरो ही होगा। यानी कि आपको शुरुआत तो स्क्रैच से ही करना है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए नेक्स्ट लेवल का नॉलेज, नेक्स्ट लेवल का स्किल, नेक्स्ट लेवल के टूल किट्स वगैरह आपको तैयार करने पड़ेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज के लिए, राइट। ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स, कभी भी सीखना मत छोड़िए। कई बार लोगों को लगता है अरे यार सब पता है मेरे को, सब मालूम है, ये सब क्या बातें कर रहा है, ये तो मैं जानता हूं। अरे राकेश आता है एक ही चीज को 4 बार बोलते हैं, अरे तो क्या हो गया? मैं अगर मान लो अगर मैं 1 घंटा लेता हूँ, 15 मिनट तो कुछ नई चीज बोलता हूँ, शायद उससे आपको लर्निंग मिल जाए। मैं अटेंड करता हूँ, मैं गूगल पे जाकर ढूंढता रहता हूँ, मैं जाकर कई सारे मीटिंग्स ट्रेनिंग जो यूट्यूब पे कई सारे सेशन लाइव चलते रहते हैं, मैं अटेंड करता हूँ। मेरे एटमी में ही कई सारे जो मेरी टीम के भी नहीं है, उनकी मीटिंग्स चलती रहती है, वो भी मैं अटेंड करता हूँ। मेरे टीम में नहीं है वो, मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है, कहीं ना कहीं से कुछ लिंक मिल जाता है, या फिर मुझे यूट्यूब पे कोई सेशन लाइव दिख रहा है, मैं चला जाता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। पता नहीं कहां से क्या लर्निंग मिल जाए, मैं सीखता हूँ, मैं करता रहूंगा, मैं इंपीरियल मास्टर भी बनूंगा, और उस वक्त भी मैं ये अपने एटीट्यूड के साथ चलूंगा कि मेरे को लर्निंग करनी है, मुझे सीखना है, ठीक है। इसी एटीट्यूड के साथ आप लोग को भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब कि अपने आप को हमेशा नई चीजों को तैयार रखो। इंडस्ट्री, हम लोग एक चीज और मैं बार बार कहता हूँ, वी आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं रही जो आज 98 या 2000 में हुआ करती थी, या 2002 में हुआ करती थी, ठीक है ना। पिछले 5 साल के अंदर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव के साथ आपको ही चेंज होना पड़ेगा। उस चेंज को लाने के लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपसे हम जो बात करने वाले हैं, फर्स्ट बिल्ड योर सेल्फ। कई लोग इस बिजनेस में पैसा के पूछोगे किस लिए बिजनेस ज्वाइन किया, पैसा कमाने के लिए, उसको बोल देना भैया कभी नहीं मिलेगा पैसा। इस बिजनेस में जो आदमी शुरुआत में ही पैसा पैसा कर रहा है, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, अगर शुरुआत में ही आदमी पैसा पैसा कर रहा है ना, वो देखना उसको कुछ नहीं मिलता है। 3 इडियट में कहता है ना, काबिल बनो, पैसा तो झक मार के आएगा। तो ये बहुत, देखिए जो भी किताब लिखा है, जो बुक्स लिखते हैं, जो मूवी का कहानी लिखता है ना, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। कहने का मतलब ये कि अपने आप को उस लेवल पे तैयार कीजिए, चीजें अपने आप आपके सामने आनी चालू हो जाएंगी। करेक्ट? तो अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपने आप को इतना बिल्डअप कर लो, इतना अपने आप को लोग जब कहने लगे कि यार ये आदमी गजब है, ये आदमी शानदार है, ये आदमी ने क्या बात करता है, कमाल का आदमी, इसको सुनने में मजा आता है। इस लेवल पे अपने आप को डेवलपमेंट करते चले जाओ। मैं हर आदमी करता, हर आदमी, मैं कोई इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था, मैं भी एक समय बोलता नहीं था। आज से 15 साल पहले मेरी जो इमेज थी ना, यार लड़का बहुत साई नेचर का है, ये बोलता ही नहीं है यार, बहुत कम बोलता है, ये अपना किताब लेके बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या करता है, ये बोलता नहीं। और आज मैं आपके सामने घंटों घंटों एक 6 मीटिंग लेता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। संडे के दिन 5 6 मीटिंग होती है, 8 घंटे बोलना पड़ता है। तो मैंने ऐसा थोड़ी था, मैंने भी डेवलप किया ना अपने आप को, तो ऐसे भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को उस लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा। राइट? यही था आज मेरा प्रेजेंटेशन, और यही चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सारी चीजों पे वर्किंग करना स्टार्ट कीजिए। ये बिजनेस बहुत कुछ देगा, लेकिन उस बिजनेस बहुत कुछ लेने के लिए आपको बहुत कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव करने के लिए क्या आप तैयार हैं? ये मेरा सवाल आप सभी लोगों से। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे तो इस बिजनेस में बहुत कुछ है लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है? बहुत कुछ होने के बाद भी आप ही देखोगे ना यार, इस बिजनेस में आपके सामने ये चीजें होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब आपको लगा यार ये बंदा, अच्छा अभी तो जैसे सवास्कर जी है, अभी आपको एक मैं लर्निंग बताता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ होकर के आया, पिछले 1.5 महीने में मैंने लगभग 7,000 किलोमीटर ट्रेवल किया। 7,000 किलोमीटर 1.5 महीने, 45 डेज, 7,000 किलोमीटर। इस बीच में मैंने 5 ऑफलाइन सेमिनार की, 5। सैटरडे संडे मेरी, मंडे टू फ्राइडे मेरी वर्किंग होती है सर। सैटरडे संडे 2 दिन मेरे हाथ होते हैं, लेकिन 1.5 महीने में 5 ऑफलाइन मीटिंग में कर चुका हूं अभी तक। मैं क्यों लगा रहा हूं इतनी ताकत? क्योंकि मुझे पोटेंशियल मालूम है ना। मैं क्यों जा रहा हूं इतनी दूर, मतलब 12 1300 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाकर के मैंने अभी ऑफलाइन मीटिंग करके आया हूं। उसी में से अभी मैं कुछ लर्निंग आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ टाइम पहले, या 4 दिन 5 दिन पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैं छत्तीसगढ़ में था और वहां पे हमारे जो अपलाइन है, मिस्टर सवास्कर, TN सवास्कर, शरण रोज मास्टर, मिस्टर मोहित पांडे, डायमंड मास्टर फ्रॉम झारखंड, दिनेश कावड़ेकर, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र से ही है वो, और करण पटेल, ये सब लोगों से मुझे, ये 4 लीडर मेरे उस मीटिंग के अंदर, उस सेमिनार के अंदर थे। और इन लोग से जब मैं मिला हूं, इन लोग से जो मेरी लर्निंग हुई, इन लोगों को सीखा हूं कि यार आदमी लोग कैसे काम करें, इनका विजन बहुत क्लियर है और बहुत डेडिकेटेड है, बहुत जबरदस्त लेवल पे डेडिकेशन है इनकी। वरना क्या जरूरत था शैरोन मास्टर की, मतलब आज देखो उनकी लाखों की इनकम है यार, लेकिन जब उनको मालूम चला कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है और हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाला कि सर आपको आना चाहिए, आप आ सकते हैं क्या, उन्होंने इमीडिएटली बोला डन करो। और वो आदमी खुद ड्राइव करके 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो अंबिकापुर पहुंचे और वहां पे हम लोगों ने ऑफलाइन मीटिंग किया। राइट? ये डेडिकेशन दिखाता है, और यही रीजन है कि आज वो शरण मास्टर, और यही आदमी कल को फॉरेन ट्रिप भी जाएगा, यही आदमी कल को स्टार मास्टर भी बनेगा, इंपीरियल मास्टर भी बनेगा। तो आपका डेडिकेशन ही सब कुछ शो करता है दोस्त। इस बिजनेस में यही डेडिकेट, मतलब आप इतनी मेहनत करो कि कभी भी इन फ्यूचर आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार शायद थोड़ा सा और एफर्ट मारे होते तो कुछ और बात होती। देखना, ये मैं इसलिए, ये वर्ड मैं लाइन इसलिए यूज कर रहा हूँ, कई सारे कंपनी के लोगों से मैं मिला हूं, मैं कई, आप कंपनी का नाम बताओ ना, मैं मीडिया इंडस्ट्री में ना, मैंने यही काम किया और मैं जानबूझ के ये काम पकड़ता था कि यार मिले तो सही, देखे कौन सी कंपनी है। ओरिप्लेन वाले आते थे, ओरिप्लेन और एवॉन का जो सेंटर है यहाँ पे, उनके मार्केटिंग हेड, सबसे मिला हुआ और सबके लीडर से भी मैं मिला हुआ। मैं सब कुछ, मतलब मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ, और कई लोगों को इस चीज का रिग्रेट भी है। कई लोगों ने इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे पहुंचा, बिजनेस डाउनफॉल हुआ, फिर वो बिजनेस से बाहर चले गए, फिर नौकरी करने लगे। आज जब वो मुझे मिलते हैं, यार काश अपन, यार बोलो नौकरी में तो आ गए यार अपन, ठीक है, लेकिन जानते हो बॉस, शायद थोड़ा सा और मेहनत कर लेते ना, और वहां पे जो लाइफ सेट होता है वो उसका मजा ही अलग। वो रिग्रेट कर रहे हैं आज के लिए, उनको रिग्रेट फील होता है।
पैसा कमा रहे हैं नौकरी के अंदर, कोई बड़ी बात, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो आज बोलते हैं ये बात, ठीक है ना, कि यार थोड़ा सा और एफर्ट मार के अपन उसी चीज को डेवलप कर लेना चाहिए था। ये रिग्रेट आप लोगों में से कहीं किसी को ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बिजनेस में सब कुछ है, पोटेंशियल है, बिजनेस की कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली बहुत साउंड है, कोई डेट नहीं है कंपनी के पास, कोई डेट नहीं है। बहुत सारी कंपनी लोन लेके बैठी है, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा मैं। कई साले तो चेक बाउंस करता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल, किसी को पता भी नहीं होता। हमारी कंपनी डेट फ्री है साहब, कोई लोन वोन कुछ नहीं है, तो फाइनेंशियली वी आर वेरी साउंड। कंपनी की प्रोफाइल दमदार, कंपनी की प्रोफाइल दमदार, कंपनी का प्लान दमदार। बस हमें अपनी ताकत झोंकनी है, कंपनी अपनी ताकत झोंक रही है, आप लोग को भले ही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कंपनी अपनी ताकत झोंक रही है, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड हम लोग भी काम करते हैं और ये टारगेट ओरिएंटेड कंपनी भी काम करती है। कंपनी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम आगे बढ़ रही है और हमें भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और आज की मीटिंग में जो मैंने आपको डिस्कस करना था वो मैंने डिस्कस कर दिया, और लास्ट में केवल एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीडियो से मैं क्लोज करूंगा इस सेशन को, तो बने रहिएगा अगले 2 मिनट के लिए। जस्ट अ मिनट, ये मेरा बड़ा फेवरेट वीडियो है। मैं नॉर्मली वीडियो उतना नहीं चलाता, बट फिर भी मुझे लगा कि यार आप लोग से मैं दिखाना चाहिए आप लोग को। आई डोंट नो, मुझे समझ में आता है ये शायद चल जाए एक बार। जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए इसको, छोटा सा वीडियो 3 मिनट का। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू। ऐसी आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबल। सिर्फ अगर एक दर्जी है, पैंट सीता है, 1000 तरीके की पैंट सी सकता है वो, अगर वो चाहे तो। अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा। लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो 1000 तरीके की पैंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो पैंट। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा, तो आज यहाँ पे हूँ। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए, लेकिन वो पहले मोची थे, जूता सीते थे। लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना, वहाँ से कभी फटता नहीं था वो, भले दूसरी जगह से फट जाए, लेकिन वहाँ से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले ही वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया, लेकिन सिलवाना वहीं जाके है, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपका आगे बढ़ाती हैं, बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन उसके वही है, कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज। मैं आप लोगों को ये चीज मैं क्यों दिखा रहा था, ये हालांकि थोड़ा वॉइस, आई डोंट नो, वॉइस थोड़ा सा इसका लो आ रहा है ना, क्योंकि 10 बज चुके हैं। मैं इसको दोबारा नेक्स्ट में आपको कभी दिखाऊंगा। और ये देखिए, पैशन की बात बहुत जरूरी चीज है, ये कि पैशनेट होके ही काम। ये बिजनेस हमारा ऐसा है ना कि अगर आपने ढील डोल होके काम किया, मतलब ढीला ढाला होके काम किया, तो नहीं चलने वाला। यहाँ पे पैशनेट होना पड़ेगा,
ताकत झोंकनी पड़ेगी आपको, है ना। ताकत इस लेवल पे झोंकनी पड़ेगी कि सामने वाला, एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम लोग पढ़े थे ना, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर आप एनर्जी छोड़ो, एनर्जी अगर आप कोई मीटिंग के अंदर सीमेंट में डालते हो ना, तो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो लीडर है, जो शख्स अभी जो आपने वीडियो देखा, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसने अपने लाइफ में बहुत इस लेवल पर स्ट्रगल किया है। 14-15 साल तो स्ट्रगल ही करता रह गया, लेकिन एक पैशनेट था कि मुझे करना है तो यही करना है, और निकाल लिया ना, सारी चीजें रिकवर हो गई 4-5 साल में, राइट। इस बिजनेस में भी इसी तरीके से हमें पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ 95% 90% यहाँ पे वर्क नहीं करता, 100% ताकत लगाइए, राइट। और जल्दी हम लोग वापस आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोगों से दोबारा हम लोग, अच्छा कल की मीटिंग के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था, मिस कर रहा था मैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं रात को 9 बजे लेने वाला हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्री प्लान रहिएगा और अपने टीम को 100% लेकर के आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक नए सेल्स मास्टर को मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहा हूं, जो अभी लेटेस्ट आखिरी मतलब सितंबर के महीने में उन्होंने सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया है। डायनेमिक लीडर है, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है, उनको मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेकर के आऊंगा। तो एक नए सेल्स मास्टर की स्टोरी कल हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है ना। सेल्स मास्टर देखिए, लाइफ में सक्सेस करना है तो सक्सेस स्टोरी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख करके आप बैटिंग करना नहीं सीख पाओगे। सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कैसे करता था वो देखना बहुत जरूरी है, प्रोसेस सीखना पड़ेगा। कल उसी प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक कल का इवेंट बहुत ही शानदार इवेंट होगा, मैं पहले से आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तैयार रहिएगा। इसकी रात ठीक 9 बजे सेम प्लेटफॉर्म का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। कल सुनने के लिए तैयार रहिए, और एक नए दमदार लीडर आपके सामने होंगे, जो न्यू सेल्स मास्टर, यंगेस्ट सेल्स मास्टर, यंगेस्ट तो नहीं बोलूंगा बट बिल्कुल नए हैं, और सितंबर के महीने में उन्होंने कोर्स किया है, उनके हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और एंजॉय कीजिए, बिजनेस को भी एंजॉय कीजिए, लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।